Assalamu alaikum, my dear students of class 7, and welcome back to another virtual lesson which is being organized by your school Metropolitan. Dear students, we are going to discuss today about what is echo. Echo is when the sound waves that travel to the wall are reflected by it, which means that if you have said something and the sound is going to hit a wall, this will be your sound, and then it will, after hitting, reflect it, right? This will be called reflected sound. The sound heard after reflection from the surface will be called echo. The sound which you will hear from this section will be the echo. जब भी कोई साउंड वॉल से टकरा के वापस बाउंस बैक होगी, वो साउंड आपके लिए इको साउंड्स कहलाएंगी. And these are produced in a very large surface like cliffs, mountains. जो higher surfaces होती हैं वहाँ पे echo ज़्यादा produce होता है because वहाँ पे spaces ज़्यादा होते हैं. Then let's talk about what are ultrasonic and what are infrasonic frequencies. जैसे कि हमने last lessons में पढ़ा था कि human ear can only hear from 20 to 20,000 hertz. Hertz is the symbol of sound, right? So this is the human ear capacity to hear, right? But ultrasonic rays जो frequencies जो होती हैं वो होती हैं higher than 20,000, right? These frequencies are higher than 20,000 hertz. Human ear cannot hear it because it is very high, right? हम क्यों नहीं सुन सकते? Because उसकी sound बहुत ज़्यादा high होती है. Only the animals can hear it. And the fun fact about this is dogs can hear around 50,000 hertz. So it's kind of very high than the human ear, right? Then if we talk about bats, they can produce 70,000 hertz just by themselves, which is very high than our human ear to hear it. Now let's talk about what are infrasonic frequencies. These frequencies are lower than 20 hertz. As we all know, we have to hear whether 20 or more than 20, right? But these frequencies are less than, means 20 will be greater than, and infrasonics जो होती हैं वो less than 20 hertz होती हैं, right? So these frequencies cannot be heard by an human ear. Okay students, noise are the unwanted and unpleasant sounds which hurt our eardrums. जो sounds हमें अच्छी नहीं लगती, जो बहुत ज़्यादा loud होती हैं, like horns, loud music, loud drums, तो ये क्या होती हैं? ये unpleasant sounds होती हैं, and these sounds are called noise. Urbanization and industrialization की वजह से क्या हुआ है? We have increase the noise pollution as we have been increasing the cars. We have seen the traveling expenses. You have seen कि हमारे traveling expenses ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और उसके लिए हमें क्या यूज़ होता है? हम trains यूज़ करते हैं, हम airplanes यूज़ करते हैं, cars यूज़ करते हैं. And that particular traveling expenses we also hear that उनके बहुत ज़्यादा heavy हॉर्न्स होते हैं. ट्रेन का हॉर्न बहुत ज़्यादा हैवी होता है, विच इज़ काइंड ऑफ अनप्लेजेंट, एंड इट इज़ मेजर्ड इन डेसिबल्स. नॉइज़ हमेशा हम किस में करते हैं? मेजर डेसिबल्स में. नाउ दे आर डिफरेंट काइंड्स जो जिससे नाउ नॉइज़ जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स पैदा करती है, राइट? So first of all is high pitched noise increase tension. If you guys remember the start of the lesson, हमने pitch डिस्कस की थी. व्हाट आर पिच? पिच क्या होती है? दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग पिच होती हैं. सम आर वेरी हाई एंड सम आर वेरी लो. हाई नोट्स एंड लो नोट्स डिस्कस किए थे हमने, राइट? सो दोज pitch that are very high can increase the tension, blood pressure, and they can also cause heart attack and headaches. वो हमारे health issues में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा heavy sounds, heavy horns के आसपास रहते हैं तो आपके सर में दर्द होने लगता है, और वो इतने ज़्यादा उनकी frequency high होती है कि आपको heart attack भी हो सकता है. The second one is it also disturbs concentration on work and studies. If you guys take an example that you guys are studying और बाहर एक ट्रक जो है वो continuously horn pull कर रहा है, right? क्या होगा उससे?
उसके हॉर्न की वजह से आप अपनी स्टडीज़ नहीं कर पाएंगे, यू विल बी कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्टेड विद दैट पर्टिकुलर हॉर्न, विद दैट नॉइस, और आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन जो होगी वो आपकी स्टडीज़ पे नहीं होगी। सिमिलर गोज विद द वर्क, अगर यहाँ पे कोई कंटिन्यूसली हॉर्न कर रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है यू विल बी इरिटेटेड, लाइक व्हाट, व्हेन आई एम गोइंग टू वर्क, राइट, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी। सो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑफ नॉइज विच affect your daily routine life and your health as well. The second one is noise pollution control strategies, क्योंकि देखें जब पॉल्यूशन होती है, एज वी हैव डिस्कस, जब पॉल्यूशन होती है तो उसको कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजीज भी होती हैं। इन द सिमिलर फॉर्म जब नॉइज पॉल्यूशन पैदा होती है तो उसको भी कंट्रोल करने की कुछ स्ट्रैटेजीज हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज गवर्नमेंट शुड नॉट परमिट एक्सेसिव एंड अनफेयर यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। एज यू ऑल नो, शादियों में, जलसों में हमारे क्या होते हैं, लाउड स्पीकर्स यूज़ हो रहते हैं, राइट, और लाउड स्पीकर भी बहुत हाई पिच साउंड्स होते हैं। जो भी वो अटेंड कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे मौजूद होते हैं, वो ये बात महसूस कर सकते हैं कि उसकी पिच बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो डिस्टर्बिंग होती है आपकी एयर ड्रम के लिए, राइट। सो गवर्नमेंट को जो होता है परमिशन नहीं देनी चाहिए एक्सेसिव यूज़ की। Then the second one is use of earplugs should be common. There is a thing called earplugs जो आपके एयर होल जो होता है वो उसको ब्लॉक कर देता है, तो आपकी जो नॉइस लेवल होता है वो स्लो हो जाता है, वो आपको एयर ड्रम को उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। दैट्स वाई यूज ऑफ earplugs should be common, especially when you are traveling. Then usage of soft horns like trucks, बसेस, इन सब में क्या होते हैं, बिग हॉर्न्स लगे हुए होते हैं, तो उनके जो हॉर्न्स होते हैं उनको सॉफ्ट करना चाहिए। जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, प्लस उनके हॉर्न्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और सभी क्या होते हैं, हाई पिच्ड होते हैं, तो उससे आप इरिटेट भी होते हैं वाइल ट्रैवलिंग, तो उनको चाहिए कि हम उसमें सॉफ्ट हॉर्न यूज़ करें। देन कम्स प्लांटिंग ट्रीज टू रिड्यूस नॉइस लेवल। एज वी हैव डिस्कस दैट प्लांटिंग ट्रीज इज़ अ गुड फॉर अदर पॉल्यूशन एज वेल। इन सिमिलर केस कि हमें नॉइज पोल्यूशन के भी वो कंट्रोल करता है, क्योंकि जब एज वी हैव डिस्कस द साउंड ट्रैवल इन वेव्स, राइट, ट्रीज जो होगा वो वेव को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से नॉइस लेवल जो होता है वो हमारा लोअर डाउन हो जाता है। इस वजह से प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज़ गुड। देन यूजेज ऑफ थिक कर्टन्स टू अवॉइड नॉइस लेवल। एज यू नो कि अभी ज़्यादातर टाइम हमारा इंडोर गुजर रहा है, सो वी शुड use the thick curtains on our windows, on the doors, ताकि बाहर की जो high pitch sound है वो हमारे घर में ज़्यादा affect ना हो और वो उससे block हो जाए। So we have discussed all the noise strategies and how we can control the noise pollution, how noise is affecting us, and what is actual noise. So that's all for today's lesson. The rest of the work will be given to you in the PDF. Hope to see you in the next one. Allah Hafiz.